من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خاسم الجبار المبين بلاك المدركين رب الشهداء والصديقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المشدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد محمودنا الأحمد وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل سيما بقية الله في الأرض لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجابية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية القائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد سب ساتھ مل کے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز مائیں اور بہنیں، سورہ لقمان قرآن مجید کا 31 نمبر کا سورہ اور آیت نمبر 14 جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، پروردگار عالم قرآن مجید میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی یا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی جہاں پہ بات کرتا ہے، سورہ لقمان میں پروردگار عالم جب ایک ساتھ ماں باپ کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم تمہیں وصیت کرتے تمہارے ماں باپ کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا۔ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ نیکی اور احسان کیسے کیا جاتا ہے، لیکن ایک انسانی ذہن میں خیال آتا ہے جب ماں باپ دونوں کی بات آئے گی تو پھر انسان کس کے ساتھ نیکی کرے؟ ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں ماں اور باپ دونوں کی مدد کی ضرورت ہو۔ دیکھیں، کسی کے مرتبے کو میں گھٹانا نہیں چاہتی، قرآن مجید کی روشنی میں ایک عظیم احسان کی طرف خدا ہمیں توجہ دلانا چاہتا ہے۔ پہلے کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم تمہیں وصیت کرتے، تاکید کرتے اپنے ماں باپ کے بارے میں۔ جب ماں باپ کی بات آئی تو فوراً یاد دلایا کہ تیرے اس دنیا میں آنے کے لیے باپ کا تو احسان تھا لیکن ماں کا بہت بڑا احسان تھا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے جو تیرے حمل کو برداشت کیا۔ دیکھیے، انسان کی اصل اس کا باپ ہوتا ہے، والد جو ہے وہ اس کے دنیا میں آنے کی وجہ ہے، لیکن ماں کا احسان۔ فوراً خدا نے کہا کہ
हमलतहु उम्महु वहनन अला वहनी, तेरी माँ ने जो तेरे हमल को बर्दाश्त किया ना, बड़ी ज़हमतों पे ज़हमतें बर्दाश्त की। और फिर इसके बाद परवरदिगार आलम ये कहता है कि तेरी माँ ने वफ़िसालहु फ़ी आमीन, न सिर्फ ये कि तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा। देखिए आईने हुकूक जो चौथे इमाम की किताब है, हर एक के हुकूक बताए गए। उसमें चौथे इमाम ने यही कहा कि कायनात में जितने लोगों के तू हक अदा करना चाहता है ना, शायद कर सकता है, लेकिन एक शख्सियत का हक कभी नहीं अदा कर सकता। इसलिए कि जिसने ज़हमतों पे ज़हमतें बर्दाश्त की लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की, वो माँ 9 महीने तेरे वज़न को अपने पेट में बर्दाश्त किया, ऐसी जगह पे उठाया जहाँ कोई किसी को नहीं उठाता है। आप 2 घंटे के लिए 3 किलो का वज़न उठा के खड़े रहिए, फिर उस वज़न को रख के कहेंगे कि हाय मेरे हाथों में दर्द होने लगा। वो माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, कभी कोई शिकायत नहीं। अगर उसे तकलीफ होती है ना, फिर भी खुशी के साथ उसे बर्दाश्त करती है अपनी औलाद के लिए। तो खुदा कुरान में इसी एहसान की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है। फिर कहता है कि न सिर्फ ये कि माँ ने अपने पेट में रखा, उसने वफ़िसालहु फ़ी आमीन, तेरी दूध पिलाई का जो दौर था 2 साल का, इसे उसने मुकम्मल किया। इस दौर में भी माँ को कितनी तकलीफ होती है। और फिर इसके बाद खुदा कुरान में कहता है अब माँ बाप दोनों की बात होती है। अनिश्कुरली वले वालिदैन, पहले माँ बाप की बात की, फिर माँ के अजीम एहसान की तरफ तवज्जो दिलाई। सूरह लुकमान आयत नंबर 14। फिर खुदा कहता है अनिश्कुरली वले वालिदैन, अब तुझे चाहिए कि तू जहाँ पे खुदा का शुक्र अदा करना चाहता है ना, वहीं पे माँ बाप का भी शुक्र अदा कर। देखिए इमाम रज़ा ये कहते खुदा ने कुरान में जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म दिया है ना, अकीमुस्सलाह, कहीं पे आपको अकेली नमाज नजर नहीं आएगी। व आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। जहाँ जहाँ खुदावंद आलम ने कुरान में 3 जगहों पर 3 चीज़ों का जिक्र किया, वहाँ पे दूसरी 3 चीज़ों को साथ साथ ज़रूर बयान किया है। जहाँ जहाँ खुदा ने नमाज की बात की, वहाँ पे ज़कात की बात की। जहाँ जहाँ परवरदिगार आलम ने तकवे की बात की, और तकवा कौन सी चीज़ है? सूरह आल इमरान। खुदावंद आलम ये इरशाद फरमाता है फतज़व्विदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा फत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। अब तकवा क्या चीज़ है? देखिए आज सबसे बड़ा मसला हमारे अंदर खुदा का डर नहीं है। तकवा यानी खुदा का डर। हम माशरे में सबसे डरते, खुदा से नहीं डरते। इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशानी की वजह तकवे की कमी। आज खुदा का डर इंसान के दिल से चला गया है। इल्म चाहे कितना बड़े, अगर इंसान अमल की मंजिल पे ना आए तो इल्म किसी काम का नहीं है। पहले के लोगों में इतना इल्म नहीं था, लेकिन अमल की मंजिल पे कितने आगे थे। शर्म और हया इतनी ज़्यादा थी, बुज़ुर्गों का एहतराम इतना ज़्यादा था, गीबतें इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लोग एक दूसरे से इतने ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते थे, अपने काम छोड़ छोड़ के फ़ोन पे बात करके फला के घर में ये हुआ फला। देखिए अजीज़ो, तकवा आज दुनिया में जितनी परेशानियाँ ना, सब की जड़ तकवे की कमी, अल्लाह का डर नहीं हमारे दिल में। ये एक दिन में 2 मैयतें 3 मैयतें, आप देखिए कुछ पैगाम हमें मिल रहा है, इबरतें हमारे लिए। आज ये चले गए, कल हम चले जाएंगे, क्या काम आया? न बड़े बड़े मकान काम आए, न दौलतें काम आई, न औलाद काम आई, न शौहर, न वालिदैन, न बीवियाँ, चाहे कुछ भी था सब कुछ छोड़ के चले गए। क्या हमें और आपको खुदा को जवाब नहीं देना है? देखिए अगर एक मैयत की खबर सुने ना, इंसान का दिल दहल जाता है। आज इतनी मैयतों की खबरें सुनने के बाद भी हमारे दिल में खुदा का डर नहीं है। हम फिर वही गुनाह के रास्ते पे। अजीज़ो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है और ये कोशिश करता है हमें गुनाह के रास्ते पर चलाए। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है हर लम्हा अपने आप को खुदा की बारगाह में हाजिर और नाजिर पाए। हमेशा ये सोचे कि मुझे हर अमल का, चाहे लोगों को पता चले न चले, मुझे खुदा को जवाब देना है। आइए वापस पलटिए, बात कहाँ से चली थी? सूरह आल इमरान। फतज़व्विदू, खुदा कुरान में कहता है ज़्यादा सफ़र तैयार करो। ज़्यादा सफ़र यानी क्या? सामान्य सफ़र। देखिए आजकल जो करबला के रास्ते बंद है, इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद है। कोई आशूरा करबला में करना चाहता था, कोई अरबई करबला में करना चाहता था। बस दुआ करे खुदा इमाम के ज़हूर के साथ ये तमाम रास्ते खोल दे। आशूरा करबला में करे तो इमाम ज़माना के साथ, करबला की ज़ियारत, चेहलुम की ज़ियारत, अरबई की ज़ियारत करबला में करे तो इमाम ज़माना के साथ। खुदा इमाम के ज़हूर के सदक़े से तमाम परेशानियों को आसान करे
तमाम बीमारों को शफा इनायत करे, इस अजीम बीमारी को खुदा निस्तो नाबूद करे। अय्याम अज़ा के दिन करीब आ रहे तो शान और शौकत के साथ फिर से अज़ा खाने सज जाए। हर साल जो मसाइब सुनते थे ना जाकिरों की ज़बानी, आलिमों की ज़बानी, इस साल मसाइब सुने तो इमाम ज़माना की ज़बानी। मौला बताए कि करबला में क्या मसाइब बीते हैं। मेरी अजीज माए बहनें, देखिए आजकल जो रास्ते ज़ियारत के बंद हो चुके हैं, हम सब परेशान हाल है मौला। एक तरफ तो अज़ा खाने बंद हो चुके हैं, अज़ादारी बंद है, ज़ियारत के रास्ते बंद है, लेकिन खुदा कुरान में कहता है फतज़व्वदू। मिसाल के तौर पे आपने पासपोर्ट दे दिया है और पासपोर्ट ऑफिस से आपको जवाब आया है कि किसी भी वक्त आपको वीज़ा लग सकता है। किसी भी वक्त 13 तारीख, 14 तारीख, 15, किसी भी वक्त आपको अचानक से बताया जा सकता है कि आपका वीज़ा लग चुका है, आपको करबला जाना है। तो अब आप फतज़व्वदू क्या करेंगे? सामान तैयार रखेंगे, एक बैग को तैयार रखेंगे ये करबला जाने के लिए। कितने दिन रुकना है? 20 दिन, 22 दिन, 1 महीना, उतना सामान तैयार करके रखेंगे। खुदा कुरान में कहता है फतज़व्वदू, सामान सफ़र तैयार रखो, एक बैग तैयार रखो जो तुम्हें कब्र में लेके जानी है। अब लोगों से पूछे कि बताइए करबला जाना है, तो पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे करबला में कैसा मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, कौन से लिबास वहाँ पे काम आएंगे। ऐसा ना हो हम गर्मी के लिबास लेके जाए, वहाँ पे ठंडी हो, वहाँ पे बारिश का मौसम हो। तो खुदा ने कुरान में एक ही जुमले में सब कुछ बता दिया। कहा फतज़व्वदू, सामान तैयार रखो, एक बैग तैयार रखो, तुम्हें कब्र का सफ़र करना है, बरज़ख का सफ़र करना है। फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा, जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो तुम्हें बैग में डालनी है ना, जो तुम्हें कब्र में काम आएगी। कफन तैयार रखते हो तो कफन में एक चीज़ साथ में डाल दो, कौन सी चीज़? फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा, सबसे बेहतरीन चीज़ जो काम आएगी ना, तक़वा काम आएगा, खुदा का डर। कितना मैंने दुनिया में खुदा का डर दिल में रखा है। और फिर खुदा कुरान में कहता है तक़वा कौन इख्तियार करता है? खुदा से कौन डरता है? सब नहीं डरते। फत्तकूनी या उलिल अलबाब, अगर तुम साहिब अक्ल हो तो तक़वा इख्तियार करो, यानी जिसके अंदर अक्ल होगी ना वही खुदा का डर अपने दिल में रखेगा। साहिब अक्ल, जिनके पास अक्ल है, क्योंकि मरने के बाद का सफ़र बड़ा मुश्किल सफ़र है अजीज़ों। ऐसा सफ़र है कि जिसमें इंसान मोहताज हो जाता है। आप जब कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं ना, बड़े बड़े हैंड राइटिंग में कुछ जुमले लिखे हुए हैं, ए हमसे पहले जाने वालों, हम तुम्हारे बाद आने वाले। अब सोचिए, अपने आप से पूछिए मुझे कब आना है। अंदर से जवाब मिलेगा नहीं पता। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। आज पैरों से चल के गई हूँ, कल किसी के कंधों पे उठा के मुझे लाया जाएगा। आज इतना बड़ा घर जो मुझे छोटा लगता है ना, कल ये छोटी सी 4 बालिश कब्र है, उसमें मुझे लिटा के मेरी औलाद भी चली जाएगी, मेरा शौहर भी चला जाएगा, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, किसी को मुझे काम आएगा। तो तकवा, मैंने कितना खुदा का डर अपने दिल में रखा है। मेरी अजीज माए बहनें, आइए वापस पलटे गुफ्तगू, चलिए सूरे लुकमान की आयत नंबर 14। खुदा कुरान में कहता है 3 चीज़ों का जिक्र 3 चीज़ों के साथ। जहाँ जहाँ खुदा ने तकवे की बात की, नमाज की बात की, इमाम रज़ा कहते हैं वहाँ पे ज़कात को साथ लिया, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। जहाँ जहाँ खुदावंद आलम ने कुरान में तकवे की बात की, तकवा इख्तियार करो, मेरा डर अपने दिल में रखो। क्यों लोगों से डरते हो? ये देखो कि तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है, सब कुछ जवाब तुम्हें अल्लाह की बारगाह में देना है। जहाँ पे तकवे की बात की, वहाँ पे सिले रहम की बात की। लोग चाहे अच्छा कहे न कहे, मेरा परवरदिगार तू देख रहा है। मैं जो सिले रहम करती हूँ ना, तेरी खुशनुदी के लिए। हो सकता है रिश्तेदारों से जितना सिले रहम करे वो बुराई करे, लेकिन मुझे खुदा को जवाब देना है। परवरदिगार मैं तेरी रज़ा के लिए। और जो बंदा खुदा की रज़ा के लिए काम करता है ना, दुआए अरफा में इमाम हुसैन कहते, माबूद जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया। हमेशा खुदा की खुशनुदी को हासिल करने की इंसान कोशिश करे। और मेरी अजीज माए बहनें, आइए तीसरी चीज़, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ अपनी इबादत का जिक्र किया है, इमाम रज़ा कहते पूरे कुरान में 3 चीज़ों का जिक्र 3 चीज़ों के साथ। नमाज की बात की, व आतुज़ ज़कात। जहाँ जहाँ तकवे की बात की, वहाँ पे सिले रहम की बात की। और तीसरी चीज़, खुदा ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पे अपनी इबादत का जिक्र किया, मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, मेरी इताअत करो, वहीं पे फ़ौरन बाद परवरदिगार आलम ने अपनी इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन को इज़्ज़त और एहतराम देना,
رسپیکٹ آف پیرنٹس، اپنے ماں باپ کو عزت اور احترام سے دیکھنا. ماں باپ کی اطاعت، دیکھیے گناہ کے مرحلے میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ کہیں نمازیں قضا کرو تو اطاعت واجب نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ماں باپ کو انسان جھڑک دے، ماں باپ کی بے احترامی کرے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے. دیکھیے ایک عمر کا ایک سٹیج ایسا آتا ہے جب والدین اس عمر میں پہنچتے ہیں نا، جوانی کی منزل میں جب اولاد آتی ہے، اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ ماں باپ کا مزاج بہت سخت ہو گیا ہے، یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ خدا نے فوراً انسان کو روک کے کہا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تمہارا سب کا پلٹنا ہماری طرف ہے. آج یہ ضعیف ہو گئے نا، تمہیں اچھے نہیں لگتے، کل تم بھی ضعیف ہو جاؤ گے. آج جو سلوک تم اپنی اولاد کے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے، کل تمہاری اولاد یہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گی. اور دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. بزرگوں کی کہاوت ہے نا، وہ بالکل صحیح ہے کہ سوئی کے پیچھے دھاگا چلا آتا ہے. آج ہم جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے نا، وہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. اور بڑی مشہور روایت ہے، تاریخ میں ایک واقعہ آپ سب نے سنا ہوا کہ ایک ضعیف ماں باپ بیچارے، ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی. اب دیکھیے ضعیفی میں ایک عادت ہو جاتی ہے کچھ چیزوں کو بار بار تکرار کرنے کی. یہ اولاد کی اوپر ہے کہ اس چیز کو اچھے طریقے سے بھی لے اور برے طریقے سے بھی لے. جب ماں ضعیف ہو گئی تو بیٹا جو تھا وہ ماں سے تھک گیا. ایک دن ماں سے کہتا ہے کہ چلو کہیں پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں. ماں تو بیچاری خوش ہو گئی. دیکھیے بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ ضعیفی کی منزل کے جب یہی ماں باپ تھے، آج یہ ضعیفی کی منزل میں ہے، کل یہی ماں باپ تھے. کتنی زحمتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کبھی کوئی شکایت نہیں. وہیں پہ فوراً ماں خوش ہو گئی. بیٹا ماں کو لے کے جا رہا ہے گاڑی میں بٹھا کے، اور جب چلتے ہوئے بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے کہ اماں آپ پریشان نہ ہونا، کبھی کبھی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کروں گا. ماں فوراً سمجھ گئی. کہتا ہے بیٹا تو مجھے نرسنگ ہوم چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے کیا؟ تو مجھے وردھاشرم چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ ماں میں نے تو ابھی آپ کو بتایا بھی نہیں، ابھی تو مینٹلی پریپیئر کر رہا ہے کہ اب کبھی آؤں گا ملنے کے لیے، ضرورت ہو تو بتا دینا، گھبرانا نہیں. ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا کیوں نہ سمجھ جاؤں، میں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا. عزیزو آپ دیکھیں جیسا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، سماج کا ڈر نہیں، لوگوں کا ڈر نہیں، خدا کا ڈر اپنے دل میں. چاہے یہی ماں باپ باہر جا کے ہمارا برا بولے، ہمیں بہت برا لگتا ہے نا، ہم جان دیتے وہ ہماری برائی کرتے، کوئی بات نہیں. عزیزو سوچے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرتی ہوں، اور میری نیکی کو مجھے لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے، میرا خدا مجھے اس کا اجر دے گا. چاہے یہ بزرگ دے نہ دے، عمر کے حساب سے اس کا دماغ ایسا ہو گیا، میری اولاد میں خدا مجھے ضرور اس کا اجر دے گا. اور پروردگار کا وعدہ ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جسے خدا کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی لوگوں کے لیے نیکی نہیں کرتا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تمہارا سب کا پلٹنا میری طرف ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ تھا. ماں باپ کا عظیم احسان کتنا زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ والدین کے جو حق اولاد پہ واجب ہے نا، زندگی میں 7 حق واجب ہے، مرنے کے بعد 7 حق واجب ہے. زندگی میں جو 7 حق ماں باپ کے واجب ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کیا کیا حق ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی ملاقات کے لیے جانا، والدین کو ان کی ضرورت کو پورا کرنا، مانگنے سے پہلے انہیں عطا کرنا، ان کے ساتھ نیکی احسان. دیکھیں لیکن مرنے کے بعد بھی 7 حق ماں باپ کے اولاد پر واجب ہے. جب وہ اس دنیا سے چلے جائے 7 حق اولاد پہ واجب ہے، جس میں سے ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی واجبات قضا، نماز روزوں کی ادائیگی کرانا. جو بھی ان کی نماز روزے قضا ہے، جو بھی ان کے واجبات چھوٹ چکی ہیں ان کی ادائیگی کرانا اولاد پر واجب ہے. آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علی کے اگر توضیح مسائل پڑھے تو اس میں بڑے بیٹے پر واجب ہے. لیکن اگر بڑا بیٹا نہیں کر رہا ہے، یہ نہ سوچے میرے اوپر واجب نہیں ہے، میں تو سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، اگر میری ساس کا مثال کے طور پہ انتقال ہو گیا، بڑے بیٹے پر واجب ہے، میرے جیٹ پر ہے، میرے نہیں. عزیزو چاہے وہ نہ کرے تو ہم نیکی کریں، اس لیے کہ آج میں اپنے مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کروں، کل میری اولاد میرے ساتھ نیکی کرے گی. آج میں اسے نہیں بھلاؤں گی، کل میری اولاد مجھے نہیں بھلائے گی.
अजीज़ों, दूसरी चीज़ जो 7 हक वाजिब है उसमें से दूसरा हक, 7 हक तो बयान नहीं करूँगी, मुख्तसर करके इसका अजर सवाब क्या है। दूसरी चीज़, वक्तन बवक्तन उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना, वक्तन बवक्तन उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना, उनसे मुलाकात के लिए जाना। कहते कि जब कोई औलाद अपने मरहूम माँ बाप की कब्र के ज़ियारत के लिए जाती है, उन पे फातिहा पढ़ने के लिए जाती है। देखिए, सब जानते हैं कि मरने के बाद असल में जिस्म जो है वो कब्र में रहता है, रूह जो है वो बरज़ख का सफ़र करती है। जो सच्चे मोमिन होते हैं ना, उसकी रूह वादियुस सलाम में चली जाती है। नजफ़ का सबसे बड़ा कब्रस्तान, खुदा सबको वादियुस सलाम की ज़ियारत नसीब करे, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रस्तान, जहाँ पे मोमिन की रूह जो है वादियुस सलाम में चली जाती है। और अगर कोई गुनहगार है तो उसकी रूह वादी बरहूत में, जो यमन में है। और यमन में वादी बरहूत में किस तरह से अजाब में रूहों को गिरफ्तार किया जाता है, बाकायदा ये तमाम चीज़ें शेख अब्बास कुम्मी ने किताब मनाजिलुल आखिरा में बयान किया है कि मरने के बाद का सफ़र कितना मुश्किल सफ़र है। लेकिन अजीज़ों, वापस पलटिए, गुफ्तगू यहाँ से हमने आगे बढ़ाई थी कि मरने के बाद हमारा अकीदा ये है कि रूह वादियुस सलाम में मोमिन की चली जाती है, गुनहगार की वादी बरहूत में। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं ना फातिहा पढ़ने के लिए, मरने वाला अगर सच्चा और पक्का मोमिन हो, खुदा उसकी रूह को वादियुस सलाम से पलटाता है। कहते हैं, देख तेरी औलाद तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए आई है। और ये औलाद जब कब्र पे फातिहा पढ़ती है और रो के दुआएं करती है ना, मरने के बाद भी माँ बाप की दुआएं कितनी जल्दी कबूल होती है। ये रूहें तड़प के कहती है, परवरदिगारा मेरी औलाद तकलीफ में है, उसकी मुश्किल को तू आसान कर दे। और मरहूम को इसीलिए हम मरहूम कहते हैं जिसे अल्लाह की रहमत मिल गई है। हम सब महरूम हैं। जैसे ज़िंदगी में माँ बाप की दुआएं कबूल होती है, मरने के बाद भी माँ बाप की दुआएं मुस्तजाब होती है। मेरी अजीज़ माँ बहनें, ज़िंदगी में जैसे 2-3 दिन गुजर जाते, 1 हफ्ता गुजर जाता है, हम क्या कहते हैं, मेरी माँ के साथ मैंने फ़ोन पे बात नहीं की है। कभी हम ये कहते हैं कि उनकी मरने के बाद कहते हैं कि 8 दिन हो गए मैं अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं गई। हम सोचते ये तो मर गए। नहीं अजीज़ों, ये मर गए, लेकिन इनका अटैचमेंट, हमारे साथ रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। बैनना व बैनहुम बिल खैरात, हमारे और उनके दरमियान एक रिश्ता कायम रहता है, नेकी का रिश्ता। हमेशा उन्हें अपनी नेकियों में याद रखे। और माँ बाप का सबसे बड़ा एहसान, देखिए आगाए मराशी नजफी अल्लाह मकामहू जब जवान थे, आज इनकी लाइब्रेरी शहर कुम में मौजूद है। खुदावंद आलम उन पर अपनी रहमतों को नाजिल करे। यही आगाए मराशी नजफी, कितनी तकलीफ़ों में उन्होंने वो लाइब्रेरी बनाई है। अभी वक्त नहीं है कि कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी, आज रोज़ाना 2000 विजिटर्स, 2000 लोग उनकी लाइब्रेरी की मुलाकात करते हैं। ऑनलाइन भी आप अगर यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे, आपको मिलेगा आगाए मराशी नजफी की लाइब्रेरी। जितनी भी किताबें हैं ना, वो किताबें उन्होंने कैसे लाइब्रेरी में रखी वो खुद बयान करते, उनकी किताबों में लिखा है। कभी इंशाल्लाह मैं बयान करूंगी। लेकिन यही आगाए मराशी नजफी जब जवान थे, इनके दिल में सामर्रा की ज़ियारत की तड़प पैदा हुई। देखिए, आम तौर पे जवानों में ज़ियारत की वो तड़प और इश्तियाक नहीं होता है। जब इंसान एक उम्र गुजर जाती है ना, तब उसे दीनी बातों की तरफ रग़बत होती है। जवानों का अट्रैक्शन किस तरफ होता है? नए कपड़े पहनना, अच्छी महफिलों में जाना, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे उसे मज़ा आए। लेकिन अगर जवानी में कोई जवान ज़ियारत के लिए तड़पे ना, तो माँ बाप का शुक्र अदा करे। ये माँ बाप की तरबियत का असर है। तभी जवानी में कोई ज़ियारत के लिए तड़पता है। कभी कोई मौला के रोज़े पे जाने के लिए तड़पता है, मौला के दीदार के लिए कि मौला आपका दीदार हो जाए। ये माँ बाप का एहसान है जो दूध और खून में इमाम की मोहब्बत को इस तरह से डाला। वरना ज़्यादातर जवानों का अट्रैक्शन या उनकी तवज्जो जो है वो दुनिया की तरफ ज़्यादा होती है। आगाए मराशी नजफी कैसी तरबियत की थी उनके वालिद ने। जवान थे और सामर्रा की ज़ियारत के लिए दिल तड़प रहा है। अब जब तय किया तो ज़ियारत के लिए भी चले गए। लेकिन कैसे गए? जब ज़ियारत के लिए गए तो अकेले, इतनी तड़प थी कि बस जल्दी से 10 और 11वें इमाम की ज़ियारत करो। और जब रास्ता चलने लगे तो रास्ते में ऐसा हुआ कि रास्ता भटक गए। आगाए मराशी नजफी जब रास्ता भटक गए तो कहते हैं कि भूख और प्यास की शिद्दत, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बेहोश होने के करीब। जब इंसान को मदद के तमाम रास्ते बंद हो जाए तब उसे कौन याद आता है?
वक्त के इमाम। और इमाम कहते इन्ना गैरो महमलीन ले मुरातिकुम, हम तुम्हें कभी नहीं भूलते, लेकिन मौला हम आपको भूल जाते हैं। जुमे से जुमा आपको याद रखते हैं, कभी कोई तकलीफ़ आ जाए तो इस्तिगासा पढ़ के याद करते हैं। वो वक्त के इमाम है, कभी हमें नहीं भूलते हैं, हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अजीज़ों, जब इमाम ज़माना को आगाए मराशी नजफ़ी ने इस्तिगासा किया, इमाम ज़माना आए, आगाए मराशी नजफ़ी को सामर्रा ज़ियारत के लिए लेके गए, लेकिन जो रास्ते का वक्त था, बहुत देर तक आगाए मराशी नजफ़ी आलल्लाहु मकामों ने इमाम ज़माना के साथ गुफ्तगू की, बातें की। और रास्ते में इमाम ज़माना ने आगाए मराशी नजफ़ी को 14 नसीहतें की, जिसमें से एक नसीहत ये थी कि मराशी नजफ़ी माँ बाप के साथ एहसान करना, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे वो मर गए हो, मरने के बाद भी एहसान कर सकता है इंसान। देखिए यही तो इमाम ने बताया ना, ऐ मराशी नजफ़ी माँ बाप के साथ एहसान करना, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे वो इस दुनिया से चले गए हो। और मरने के बाद क्या एहसान कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 7 हक वाजिब है। वक्तन बवक्तन उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना, उनकी कब्रों को फातिहा खानी से महरूम न रखना। लेकिन मेरी अजीज़ माँ बहनें, जब कब्र पे ज़ियारत के लिए जाते हैं ना, फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं, हम सब के जहन में ख्याल आता है ऐसी चीज़ माँ बाप को दे जो बरज़ख में सबसे ज़्यादा काम आए। इन्ना अंज़लना की तिलावत करे, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, हर वो सूरह मुल्क की तिलावत जो नजात देने वाला सूरा है, ऐसा कोई अमल करे जो माँ बाप को सबसे ज़्यादा काम आए। आगाए मराशी नजफ़ी आलल्लाहु मकामा, जब इनकी मौत का वक्त आया, इन्होंने अपने बेटे को वसीयत की, बहुत बड़े आलिम हैं, उस चीज़ की वसीयत करेंगे जो मरने के बाद इंसान को, इन्हें पता है, कब्र में सबसे ज़्यादा काम आएगी। आगाए मराशी नजफ़ी ने कहा, बेटा मैं वसीयत करता हूँ, बहुत बड़ा वसीयतनामा, देखिए गुजराती में छप चुका है, आप ज़रूर उसको पढ़िए। बेटा मैं वसीयत करता हूँ, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, हर शबे जुमा मेरी कब्र को मसाइब सैयद शुहदा से महरूम न करना, आना मेरी कब्र पे, लेकिन मसाइब के चंद जुमले पढ़ना। देखिए मरने के बाद इंसान को ये मजलिसों का कितना ज़्यादा सवाब मिलता है। मेरी कब्र को फातिहा खानी से महरूम न रखना। बेटा कभी ऐसा हो कि तू आना तेरे लिए मुमकिन न हो, कभी इंसान बाहर चला जाता है, ज़ियारत पे चला जाता है, तो आगाए मराशी नजफ़ी कहते बेटा अपनी तरफ से किसी को नायब बनाना, मेरी कब्र पे आए और मसाइब सैयद शुहदा पढ़े। देखिए मसाइब का सवाब मरने वाले को कितना ज़्यादा मिलता है। आयतुल्लाह मुवहिदी, इनकी मरहूमा माँ ने आके कहा था कि बेटा जब तू मसाइब पढ़ के मुझे इसका हदिया करता है ना, एक फरिश्ता नूर का बर्तन लेके मेरी कब्र में आता है, नूर का तबक लेके मेरी कब्र को रोशन कर दिया जाता है, मेरी कब्र को वसी कर दिया जाता है। अजीज़ों, मसाइब का सवाब मरहूम को इतना ज़्यादा मिलता है, ये रूहें तड़पती रहती है। मसाइब का सवाब। और मुझे बताइए, ये फ़र्श अज़ा पे आना किसने मुझे और आपको सिखाया? अगर ये माँ की तरबियत न होती, अगर ये माँ का एहसान न होता, अगर ये माँ बाप दूध और खून में मौला की विलायत को न देते, लोरियाँ सुनाते हुए अगर या अली की लोरियाँ माँ ने न सुनाई होती, गिरते संभलते या अली मदद कहना न सिखाया होता, ऐ माँ खुदा तेरे बरज़ख के सफ़र को आसान करे, तूने कैसे अली वाला बना दिया, कैसे हुसैनी बना दिया, हमें पता ही नहीं चला। तेरी पाक, तूने जो पाक विलादत हमारी की, हमारी जो पाक तरबियत की, आज के मसाइब का सवाब अपने मरहूम वालिदैन की इसाले सवाब को नज़र करते हुए, एक मरहूम वालिद के चहलुम की मजलिस है, अरबई की मजलिस है। अजीज़ों, जब भी मैं चहलुम की मजलिस पढ़ने के लिए जाती हूँ ना, किसी मरहूम की अरबई की मजलिस, मुझे एक ही अरबई याद आता है। एक का अरबई और औलाद चाहे कितनी गरीब हो, बड़ी धूम से अरबई को मनाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, औलादे जमा होती है, कहते हैं मरहूम का चहलुम है, एक मरहूम का अरबई, एक मरहूम का चहलुम। सन 62 हिजरी एक का नहीं 72 का चहलुम था।
اور شام کے قید خانے میں جب زینب کبریٰ کو یہ کہا گیا نا پھوپھی اماں حکم رہائی مل گیا ہے. عزیزو جب کوئی پردیس میں رہتا ہے نا وطن سے دور اس کا دل چاہتا ہے جلدی سے وطن چلے جائے. زینب کبریٰ کو جیسے ہی چوتھے امام نے آ کے کہا پھوپھی اماں حکم رہائی مل گیا ہے. شام والی بی بی آپ کا شکریہ, رہائی ملی تو شام میں فرش ازا بچھائی. کہا سجاد بہن بھائی کو دل بھر کے روئی نہیں ہے, اگر یہ فرش ازا نہ ملتی سینوں میں دم گھٹ جاتے, مولا تیرے مصائب پہ نہ روتے تو ہماری کیا حالت ہوتی. اپنے غم بھول جاتے ہیں جب کربلا والوں کے مصائب پر گریا کرتے ہیں. خدا ان بلند آوازوں پر رحمت نازل کرے, گھٹ گھٹ کے نہ رونا, بآواز بلند مصائب میں گریا کرنا. رونے والی مائیں بہنیں جیسے ہی رہائی ملی جناب زینب نے شام میں فرش ازا بچھائی. بہن بھائی کو دل بھر کے روئی نہیں ہے. شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی, لیکن ایک جملہ کہوں رونے پر پابندی تھی. شہزادی روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے, سجاد مولا روتے تھے تو کوڑے مارے جاتے تھے. سب کو رونا نصیب ہوا, لیلا اکبر پہ روئی نہیں ہے, پروان قاسم کا ماتم نہیں کیا ہے, زینب اپنے بھائی کو روئی نہیں ہے, لیکن ایک بچی رونے کی تمنا لے کے چلی. سکینہ تو بابا پہ رو نہیں پائی, جب ہائے بابا کہتی تھی شبر تماچے مارتا تھا, ہائے چچا کہتی تھی شبر تازیانے مارتا تھا. ایک بچی رو نہ سکی اور آج بھی تڑپ کے کہتی ہے بابا میں تو نہ رو سکی, لیکن جب ازادار آ کے روتے ہیں میرے دل کو سکون ملتا ہے. دعائیں کرے خدا سب کو شام کی زیارت نصیب کرے. رونے والی مائیں بہنیں قافلہ 7 دن تک شام میں رکا رہا, شام میں گریا اور زاری ہوتی رہی. اور میرے چوتھے امام نے آ کے کہا پھوپھی اماں اربعی کے دن قریب آ رہے ہیں, بابا کا چہلم منانے کربلا جانا ہے. پھوپھی اماں چلیے کربلا. اور زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد یزید سے جا کے کہو ایک بار در زندان کو قیدیوں کے لیے کھول دے. اور میرے چوتھے امام نے آ کے کہا یزید بیویاں یہ چاہتی ہے, قیدی یہ چاہتے ہیں ایک بار زندان کا دروازہ قیدیوں کے لیے کھول دیا جائے. یزید ملعون اتنا ظالم تھا لیکن پھر بھی کہتا ہے سجاد تم جیسے قیدی میں نے نہیں دیکھے, ایسا قید خانہ جو رہائی ملے کوئی دوبارہ جانا گوارا نہ کرے. کیسے قیدی ہو پھر قید خانے میں جانا چاہتے ہو. میرا مولا سجاد کہتا ہے یزید تجھے نہیں پتا بابا کی ایک امانت زندان میں چھوٹ گئی. قیدی چاہتے الوداعی سلام کر لے اور زندان شام کا دروازہ کھلا. ایک ایک بیوی آتی ہے, قبر سکینہ سے لپٹ کے کہتی ہے بی بی خدا عزیزوں بیٹی کے دل میں کتنی تمنا ہے, کاش میں بھی کربلا جاتی, بابا کا چہلم مناتی, چچا کی قبر پہ جاتی, تماچوں کے نشان دکھاتی. ایک ایک بیوی رخصت ہو کے جانے لگی. میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی مجھے کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملی کہ رباب نے جا کے کہا ہو سکینہ خدا قبر سکینہ سے لپٹ کے کہتی ہے
سکینہ تیرے بغیر ماں کیسے مدینے جائے؟ رہائی کی تمنا تو تیرے دل میں تھی سکینہ، اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، یہ اندھیرا زندان ماں کیسے تجھے تنہا چھوڑ کے جائے؟ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ، پروردگارا وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معبود امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما۔ پروردگارہ جب امام کا ظہور و امام کی خدمت اور نصرت ہم سب کو نصیب فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، پروردگارہ تجھے واسطہ مصائب سید الشہداء کا۔ ایک والد کے چہلم کی مجلس ہے، اور وہ چہلم جو بیویوں نے کربلا میں منایا، عزیزو 72 کا چہلم تھا، سن 62 ہجری۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیلا آئی ہے اکبر کا چہلم منانے، فروا آئی ہے قاسم کا چہلم منانے، ایک کا نہیں 72 کا چہلم ہے۔ اور عزیزو روایت کا جملہ ہے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں پہنچا ہے نا، پہلا چہلم تو شام کے قید خانے میں بیویوں نے منایا، یہ دوسرا چہلم ہے جو کربلا میں منانے کے لیے آئے ہیں۔ ہر بیوی اپنے وارث کی قبر پہ جاتی ہے۔ جناب زینب امام حسین کی قبر پہ جا کے کہتی ہے، بھیا مجھے معاف کرنا، تیری امانت کو بچا کے نہ لا سکی، زندان کے اندھیرے سکینہ کو کھا گئے بھیا۔ عزاداروں میرا چوتھا امام کہتا ہے، میری پھوپھی کے دل کو کسی طرح صبر نہیں آ رہا تھا، بابا کی قبر سے لپٹ کے کہتی ہے، بھیا زینب لٹ کے آئی ہے، اجڑ کے آئی ہے، قافلہ مدینے جا رہے، بھیا تیرے بغیر زینب مدینے نہ جائے گی۔ مدینے والے پوچھیں گے، زینب عباس کیا ہوئے؟ بھرا ہوا گھر لے کے گئی تھی، اجڑا ہوا قافلہ، تیرے بغیر بہن مدینے نہ جائے گی۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے، بار بار پھوپھی کے پاس جا کے کہتے، پھوپھی اماں چلیے ہماری یہاں تیار ہو چکی ہے۔ شہزادی کہتے، نہیں سجاد میں بھائی کے بغیر مدینے نہ جاؤ گی، بھرا ہوا گھر لے کے آئی ہے، اجڑا ہوا قافلہ۔ عزیزو آنکھ میں آنسو ہے نا، جو کربلا کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے، خدا جلد سے جلد زیارت نصیب کرے۔ دل پہ ہاتھ رکھے مجھے ایک جواب دینا، جب ہم کربلا جاتے ہیں نا، 8 دن رکے 10 دن رکے، جب یہ پتا چلے کہ اب زیارت وداع پڑھ لو، تمہیں کربلا چھوڑ کے جانا ہے، دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ زیارت وداع پڑھتے لیکن اشکوں کی روانی رکتی نہیں ہے۔ ایک ہی جملہ، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، مولا اس زیارت کو آخری زیارت نہ قرار دینا، پھر سے بلانا۔ رخصت کر کے جب صحن میں آتے نا، مڑ مڑ کے گنبد کو دیکھتے رہتے، مولا پھر بلانا، مولا پھر بلانا۔ رونے والی مائیں میرے دروازے کو بوسہ دے کے پھر اشکوں کا سیلاب۔ مجھے بتائیے، جب آپ کا دل نہیں چاہتا کربلا چھوڑنے کو، زینب کا دل کیسے مانا ہوگا؟ بھرا ہوا گھر کربلا میں اجڑ گیا، بھیا تیرے بغیر بہن مدینے نہ جائے گی۔ بس آخری
जुमला, जो परेशान हाल है खुदा सब की परेशानियों को दूर करे मसाइब सैयदुश्शुहदा के सदके में। अज़ीज़ो आखिरी जुमला, कब्र हुसैन से आवाज़ आई, बहन जाने को न कहता, रुकने से मना न करता, मेरी सुगरा तेरे इंतजार में बैठी है, मदीने जाना, सुगरा को सीने से लगा के प्यार करना, जितनी बेटियां बैठी मरहूम वालिदैन की खुदा मगफिरत करे, हयात वालिदैन को सेहत के साथ लंबी जिंदगी नसीब करे। दुआएं करे अपने माँ बाप के लिए। अजीजों, मेरा मौला बेटी से कितनी मोहब्बत है, सुगरा को सीने से लगा के प्यार करना, कहना सुगरा तेरा बाबा तुझे भूला नहीं। माबूद, इन आंसुओं का सवाब, इस मसाइब का सवाब हमारे मरहूम वालिदैन, खुसूसन जिस मरहूम वालिद के चहलुम की मजलिस से परवरदिगारा इनकी साले सवाब को नज़र करते माबूद इनके बरज़ख के सफ़र को तो आसान कर दे। माबूद इन्हें बरज़ख में बीबी ज़हरा के कुर्ब में जगह इनायत फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माबूद हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत में, हमारी परवरिश में जो जो ज़हमतें बर्दाश्त की है, उन ज़हमतों के बदले उन्हें दुनिया में, बरज़ख में, महशर में और जन्नत में बुलंद तरीन मकाम नसीब फरमा। मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगारा तुझे वास्ता करबला की लूटी हुई उजड़ी हुई बीवियों का, जितनी माएँ बैठी है अपने बच्चों के लिए दुआएं करे परवरदिगारा, हर माओं की औलाद के हक़ में दुआओं को मुस्तजाब फरमा। माबूद, इस साल हमें करबला की ज़ियारत आका इमाम ज़माना के साथ नसीब फरमा। इमाम के ज़हूर के ज़रिए से परवरदिगारा हमारी तमाम परेशानियों को तो दूर फरमा। माबूद, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तमाम शुहदाए करबला, सिराने करबला, हदिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम।